Hello everyone, we are here today to learn about a new topic. It is of class 12th CBSE chapter 2. This is inverse trigonometric function. Before starting this topic, let us recap. You are aware of in the previous chapter you have learnt about relations and functions in 11th as well. Now, before starting inverse trigonometric functions, we just repeat about what inverse function is. Okay, if we are having a bijective function, f is from a to b, f is from a to b if it is a bijective function. So a corresponding bijective function with correspond to this, a bijective function, another bijective function, g from a to b, g from b to a. Okay. If f is from a to b is a bijective function, then g from b to a, which is also a bijective function, is called inverse of f, or I can write g is equal to f inverse. Now in these terms that I am telling you, a term bijective function is specified, isn't it? A function holds inverse property if it is bijective. What is the meaning of bijective function? You already are aware of that bijective function is what? Which is 1, 1 on 2, which is satisfying the properties of 1, 1 function and on 2 function. 1, 1 on 2. If I will show it to you using Venn diagram, I have taken x, y, z here. Here I am taking a, b, c, and the function which is satisfying this condition. One element of domain is related to the single element of codomain, and no element is left in codomain. This is domain and this is codomain. Okay. So if we can say also, you have learned this thing, that if codomain is equal to range, then the function will called onto, and when 1 is related to 1, then it is 1, 1. Okay, whenever a bijective function, that is 1, 1 onto function we have taken. So this type of function is called 1, 1 onto function. Okay, so this type of function is called bijective. And if another function, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए ज़रा g पे आपको, if f is from a to b is there, g कहाँ से कहाँ तक है, g is from b to a, same set we have taken. Okay, g from b to a is also a bijective function. You can check this thing कि इसीलिए इसको 1, 1 on 2 लिया जाता है कि जब आप इसका रिवर्स करें, और अगर आप g, this function is f, अगर आप इसे g to लेके जाएं, this is a, b, c, b यहाँ आ जाएगा आपका. I have taken this set as A, this one as B. तो B यहाँ पे आ जाएगा आपका B to A. If I am writing, this will be X, Y, Z. Again, 1 is related to 1 is there, and no element in codomain is left. That means codomain is equal to range. तो ये function यहाँ पे G है. So G will be called the inverse of F. Okay. So इसको अगर मैं एक definition form में लेके चलूँ, if I am taking x belongs to a and for this f is from a to a, b अगर मैं लेके चल रही हूँ, and x is belongs to a, y belongs to b is given to you, then what to write? F of x is equal to y. F image of x is y. Similarly, when I'll write this function, I'll write g from a, b to a, and I have taken y as an element of b. So g of y will be x. This condition will be satisfied. In that manner, if I am writing, यहाँ से अगर f inverse exist करता है function का, तो I'll be getting g
यहाँ से x is equal to f inverse y, and I'll be writing f inverse y is equal to gy. F inverse is equal to g. This concept you already have learned, but again just a reminder. So whenever a function holds inverse, it is important that it should be bijective, means उसे 1 1 on 2 होना ज़रूरी है. 1 1 सिंगल इमेज, हर एक का एक सिंगल इमेज आना चाहिए. हर एक एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव अ सिंगल इमेज इन कोडोमेन. और ऑन टू मतलब कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बचना नहीं चाहिए. एक्चुअली कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज. Now the next point is trigonometric functions that we'll discuss about. अब inverse trigonometric inverse function आपको मालूम है. And what are trigonometric functions? When you have started solving in 10th से आपने trigonometry के बारे में पढ़ना शुरू किया. आपने कुछ trigonometric functions पढ़े that are sin x, cos x, या आप उसमें थीटा लेते थे in place of angle, tan x, then their reciprocal. sin का क्या होता था? cosec x, then cos का secant of x, and tan cotangent or cot of x, isn't it? अब इन functions का हमें trigonometric functions तो ये रहे हमारे पास, पर हमें inverse trigonometric function निकालना है. If we have to find the inverse trigonometric function, what to do? अब अगेन ये फंक्शन आपका कैसा चाहिए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कब करेगा? जब वो 1 1 on 2 हो. सो लेट अस थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन के लिए कैसे होल्ड करेगा. लेट्स गो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड देन विल गो फॉर इट. इसका हम समझेंगे ग्राफ की मदद से. ओके, सो लेट अस ड्रॉ. इफ आई हैव टेकन y is equal to sin x, or I have taken fx is equal to y which is equal to sin x, और मुझे sin x का ग्राफ प्लॉट करना है. ये चीज़ भी आप पहले से लर्न कर चुके हो. इन ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो यू हैव लर्न दिस थिंग. जब आपके पास में यहाँ y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस यू आर हैविंग. अब ओरिजिन इज देयर. आपको मालूम है कि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है. तो ऑन y एक्सिस साइन के कोई भी एंगल में पुट करो. If I'll put sines in place of x, if I'll write 0, I'll be getting what? क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? मैंने यहाँ पे x लिया, यहाँ y लिया. जब x की जगह मैं 0 पुट कर रही हूँ, 0 इज डिग्री, रेडियन, कुछ भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे. Now what am I getting? यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? वैल्यू 0. अब मैंने, जब आप जानते हैं कि 30 डिग्री और इसको आप लिखते हैं पाई बाई, और मैं बहुत ज़्यादा पास में ना लेते हुए एक जनरल वैल्यू ले रही हूँ. पाई बाई 2 मैंने लिया यहाँ पे, तो आई विल गेट 1. अगर मैंने पाई ले लिया तो आई विल गेट 0 अगेन. उस तरह से अगर मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ भी अज्यूम कर ली, यहाँ पे ले ली, -π/2 लिया अगर मैंने यहाँ, सो आई विल बी गेटिंग -1, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. आपको मालूम है ये चीज़. सो इस तरह से जब आप इन सब वैल्यूज़ को पुट करते हुए ग्राफ बनाएंगे, यू हैव टू राइट दीज वैल्यूज़. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हुए, व्हाट एम आई राइटिंग? इट इज़ -π/2, दिस इज π/2, दिस इज पाई, देन 3π/2, और इस तरह की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी. 2π आ जाएगा और आगे बढ़ेगी वैल्यूज़ मेरी. सिमिलरली जब मैंने वैल्यू पुट करी तो आपको मालूम है कि साइन -π/2 इज -1. इधर पे -1 दिया है आपको, और हियर वी आर हैविंग द वैल्यू एज 1. ओके, साइन π/2 इज -1. कहाँ? इस तरफ वैल्यू आएगी. साइन 0 0, साइन π/2 1, देन पाई 0, देन 3π/2 अगेन. आप निकाल सकते हो साइन 270. किस तरह से देखते हैं आप? जब भी किसी क्वाड्रेंट रूल को यूज़ करते हैं, फिर दिस इज 1, दिस इज -1. तो जब π/2 पे ये 1 है, तो 3π/2 पे कितना आएगा? -1, isn't it? तो इस कंसेप्ट को लगा के भी आपके पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनसे यू हैव लर्न अ लॉट. ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है अभी आपने, तो आपको इस तरह से एडजस्टमेंट सब आने चाहिए हैं. सो यू विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ प्लॉट करने से हमें किस तरह का, यहाँ पे अगर मैंने -π लिया, 0 आ रहा है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, isn't it? एक सिमेट्रिक ग्राफ ही रहेगा, सब तरफ उसके पॉइंट सेम, एंड इस तरफ का एक ग्राफ यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर.
अब जो ये ग्राफ मिल रहा है बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इन दिस ग्राफ व्हाट आर वी हैविंग, क्या आप इसे 1 1 बोल सकते हैं? पहले तो हम 1 1 चेक कर लें, देन विल गो फॉर ऑन टू। 1 1 बोला जा सकता है क्या? देखिए अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना चाहे, यू विल राइट -π/2, 2-3 ही वैल्यू अगर मैं लेके देख लूँ, 0 मिल गया मुझे, मैंने -π ले लिया डोमेन में, देन π/2 आई हैव टेकन एंड देन पाई। इसका आंसर मुझे कैसे मिल रहा है? अगर मैंने चेक करने की कोशिश करी तो भी कितना मिल रहा है? -π इज 0, -π/2 इज -1, देन 0, देन 1 एंड अगेन 0। सिंस इन अ सेट हम जो रिपीट की हुई चीज़ें बार बार नहीं लिखते, तो देखिए यहाँ पे यू आर गेटिंग दिस। तो अगर आपने -π निकाला, अगर आपने 0 से वैल्यू निकाली और यू हैव फाउंड 0, यहीं पे आपको दिख जा रहा है कि दिस इज नॉट 1 1। ओके, तो अगर मैं पूरे साइन फंक्शन के लिए सोचूं कि मुझे साइन इनवर्स मिलना चाहिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइन फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको मालूम है कि हमें 1 1 ऑन टू ही लाना है, तब साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच, एक छोटा सा पीस ऑफ दैट ग्राफ या फंक्शन हम लेके चलते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज और डोमेन के साथ में, जहाँ पे हमें आंसर मिल जाए। मतलब हमें इस ग्राफ में देखना है। देखिए आप अगर यहाँ -π/2 से +π/2 की तरफ जाते हैं, तो व्हाट आर यू फाइंडिंग? -π/2 से +π/2 की तरफ देखिएगा, यहाँ पे विद द चेंज इन x y इज नॉट चेंजिंग। आपको दिख रहा होगा, x की आप कोई भी वैल्यू पुट करें, y की डिफरेंट वैल्यूज ही मिल रही हैं। वो यहाँ तक हुआ π/2 तक, देन अगेन इट हैज स्टार्टेड चेंजिंग। फिर से एक तरह से मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिली वही यहाँ मिल जा रही है, ऐसे कुछ कॉमन वैल्यूज मिल जा रही हैं। और आई कैन टेक दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑल्सो, कि यहाँ से यहाँ तक भी मुझे, अगर मैं इस पैटर्न तक जाऊँ तो यहाँ भी मुझे सेम वैल्यूज रिपीट होते हुए नहीं मिल रही। सो दैट मैनी ब्रांचेस कैन बी डायरेक्ट। यहाँ अगर मैं इतना इतना पोर्शन में ले लूँ अगर, तो भी मुझे 1 1 ऑन टू मिल जाएगा, isn't it? बट आई हैव टू टेक अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एक पर्टिकुलर ब्रांच लेके चलना होता है जो इजीली अप्रोचेबल है, 0 के आसपास। सबसे जल्दी मुझे जो एंगल याद आएंगे तो मुझे फटाक से उसका आंसर मिलना चाहिए। सो आई विल बी गोइंग फॉर दैट वैल्यू। तो इस तरह की जो ब्रांच है साइन फंक्शन में, अगर मैंने डोमेन को ले लिया, इफ आई टॉक अबाउट साइन x, जो फंक्शन मैंने लिया है वहां पे डोमेन मतलब x की वैल्यूज में क्या क्या पुट कर सकती हूँ। डोमेन देखिए यहाँ पे अभी आपने इंटरवल्स भी पढ़ा है, तो x की वैल्यू -π/2 से π/2 मेरी जब जा रही है, तो दिस विल बी द डोमेन जिसमें मुझे इनवर्स 1 1 ऑन टू का कंसेप्ट मिल जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज इज, जैसी साइन की वैल्यू जब मैंने -π/2 x की वैल्यू पुट करी, तो आई एम गेटिंग साइन इज -1 एंड व्हेन द अल्टीमेट लिमिट्स आई विल बी फाइंडिंग, क्योंकि कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं हो रहा यहाँ। सो आई एम गेटिंग दिस इज 1, साइन π/2 1 होता है। सो आई हैव गॉट अ फंक्शन, साइन फंक्शन हुज डोमेन वॉज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इनवर्स फंक्शन के लिए, यहाँ पे डोमेन, अगर मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया है a to b, इफ आई एम टेकिंग द फंक्शन विच इज फ्रॉम f इज फ्रॉम a to b, तो अगर f इनवर्स आएगा तो क्या होता है, वो b to a हो जाता है ना। उसी तरह से f of x we used to take, तो यहाँ हमने sin of x लिया, इन प्लेस ऑफ f I am writing sin which is from a to b, a function if I am taking. So its inverse which can be represented as sin inverse will be from b to a. Okay, अब b to a है तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डोमेन जो b है इस समय कहाँ है b? This is -1 to 1 and a is from -π/2 to π/2। आपको मालूम ही है कि क्लोज्ड इंटरवल कब वैल्यू ली जाती है, जब इंक्लूडेड होती है वो वैल्यू। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डोमेन, दिस इज साइन इनवर्स फंक्शन। तो एक अगर मैंने इस पर्टिकुलर डोमेन एंड रेंज में कोई फंक्शन साइन का डिफाइन किया, तो यहाँ पे ये 1 1 ऑन टू होगा, इसीलिए इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट ग्राफ्स के लिए ग्राफ का यूज़ करके अलग अलग साइन इनवर्स, मतलब इनवर्स फंक्शन, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक जो रेशियोज़ होते हैं उनके आप इनवर्स फंक्शन आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके,
सो एक टेबल आपको उसके लिए याद रखना ज़रूरी है. अगर वो टेबल आपको याद है तो कैन ईजिली गेट द वैल्यू. पूरा आपका ये जो चैप्टर है वो इसी टेबल पे डिपेंड करता है, व्हाट डोमेन एंड रेंज आर. ठीक है. सो ये आप टेबल एक अच्छे से याद रखिएगा. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions I have taken. Then the next column I am taking as domain, and the third one is range. And इस रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि रेंज ही हमारा मेन मैटर कर रहा है. यहाँ पे हमेशा आपको साइन की वैल्यू आपको दिख रही है ना, इट इज़ -1 से +1 ही होती है बीच में जनरली, मतलब एट मोस्ट एंड एट लीस्ट में. तो वो वैल्यूज़ इतनी वेरी नहीं कर रही उन ब्रांच में. आपकी वैल्यूज़ क्यों वेरी कर रही है? रेंज. उसी में हमें ध्यान रखना है कि हमने कौन सा पोर्शन उस ग्राफ का लेना है. सो फॉर रेंज आई कैन से इट, अनदर नेम आई कैन गिव इट एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और वी कैन से कि हमें रेंज से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलती है. तो कैसे करेंगे? अभी मेरा पहला फंक्शन है साइन इनवर्स फंक्शन. जस्ट नाउ यू हैव लर्न दैट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज -1 to 1. तो साइन का, इसका साइन इनवर्स का रेंज क्या हो जाता है? इट इज़ π/2 to -π/2 to π/2. सिमिलरली इसी तरह से अगर आप कॉस का ग्राफ प्लॉट करें तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू. अगेन कॉस भी आप जानते हैं -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है. बट रिमाइंड इज, इसको कैसे याद रखें हम? कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? व्हेन कॉस इज 0, है ना. बेसिक अगर मैं रेंज की बात करूं, एंड कॉस की वैल्यू नियरेस्ट जो आपको फटक से याद आती है वो, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना. तो -1 कब होती है कॉस की? व्हेन पाई. कैसे आप करते हैं? दिस इज 0 डिग्री एंड दिस वन इज पाई रेडियन. 0 रेडियन वी कैन से. अगर यहाँ पे कोई वैल्यू 1 है तो इस तरफ आके वो क्या हो जाएगी? -1 ऑफ द सेम रेंज. ओके. सो आई एम गेटिंग द सेम कंडीशन हियर, बट हियर एंगल्स में डिफर. एंगल्स ऑब्वियसली विल डिफर, क्योंकि वैल्यू अगर मैं चेक करूँ या मैंने ग्राफ भी प्लॉट किया तो यू विल बी गेटिंग 0 to पाई फ्रॉम हियर. एंड देखिए बेटा, अगर आप यहाँ -1 की जगह सीधे पाई सोचें, बट यू आर अवेयर ऑफ कि जब आपका ग्राफ प्लॉट होता है तो स्मॉलर टू, जब हम इंटरवल्स फॉर्म करते हैं तो स्मॉलर टू ग्रेटर होता है, इसीलिए 0 to पाई एंड इन क्लोज इंटरवल. अब बाकी चीज़ें भी आप ग्राफ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, बट यू हैव टू बाय हार्ट इट ना. कितना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अगर याद करना होता है तो उन्हें रिलेट करना बेटर है. तो किस तरह से हम बाकी चीज़ें भी याद रख सकते हैं वो देखिए. अगर आपको tan इनवर्स का निकालना है, आप एक याद रखिए, साइन. अब मेरे पास और बचे हुए कौन कौन से आ गए? साइन, कॉट, tan इनवर्स, देन tan इनवर्स का cot इनवर्स, द रेसिप्रोकल पैटर्न. अगर tan का रेसिप्रोकल इज cot, देन cot इनवर्स आई विल बी फाइंडिंग. देन cos का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है cos थीटा का. सो आई एम राइटिंग sec इनवर्स एंड एट लास्ट आई विल बी राइटिंग cosec इनवर्स. ठीक है. अब इन सब की मुझे वैल्यू फंक्शंस की निकालनी है वैल्यू मुझे. अब देखिए, साइन, tan एंड कोसेक एक जैसा प्रॉपर्टीज होल्ड करता है. जनरली वैल्यूज जब होल्ड करता है तो नियर बाय एक जैसी वैल्यूज होल्ड करता है. वैसे ही कॉस, कॉट एंड सेक, इन तीनों की वैल्यूज थोड़ी बहुत आपस में मिलती जुलती हैं. तो अगर आपको इनको याद करना है तो आप रिलेट कर सकते हो इनको. तो कैसे? देखिए, आपको मालूम है कि tan की वैल्यू तो कुछ भी, साइन की वैल्यू -1 से +1 होती है, बट tan द ग्राफ आप जानते हैं, tan की वैल्यूज भी जानते हैं, दे कैन बी अप टू इन्फिनिटी ऑल्सो ना, नॉट डिफाइंड. बहुत बड़ी पूरे रियल वैल्यूज में हम ले सकते हैं उसको. तो tan का जो ग्राफ आपका आएगा उससे आपको उसका डोमेन मिलेगा R. रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स कैन बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा. तो उसी तरह से इन्वर्स के लिए भी वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इन्वर्स कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन के डोमेन और रेंज को अगर आप इंटरचेंज कर दे तो उसका 1/(1)(2) इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, उसके डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करने से आपको उसका इन्वर्स मिलता है. सो द डोमेन ऑफ tan इनवर्स इज R. अब देखिए कैसे करेंगे. अगर मैंने -1, अब मैं देख रही हूँ मेरे पास साइन की वैल्यू -90 और
प्लस 90 है या माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू है. व्हाट अबाउट 10 माइनस पाई बाई टू? 10 एज आई टोल्ड यू 10 कोसेक एक जैसा नियर बाय वर्क करेंगे, तो 10 माइनस पाई बाई टू इज व्हाट? आपको मालूम है 10 इज द रेशियो ऑफ साइन बाय कॉस, है ना. तो साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू, दैट इज साइन 90 बाय कॉस 90, नॉट डिफाइन होता है कि नहीं. तो -1 उसकी वैल्यू इंक्लूड, माइनस पाई बाई टू इंक्लूड नहीं करेगी वो वैल्यू, बाकी उसके बाद की अप टू प्लस पाई बाई टू ऑल द वैल्यूज इट विल बी इंक्लूडिंग जो पर्टिकुलर उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है. तो इसमें क्या होता है, आपको पाई बाई टू में नॉट डिफाइन है तो उसको आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो यू हैव टू राइट ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एंड ओपन इंटरवल विल बी पुटिंग दिस इज द आंसर. सिमिलरली कॉट भी कॉस जैसा वर्क करेगा, 0 और पाई के बीच में उसका नॉट डिफाइंड वैल्यूज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आती हैं और इट्स डोमेन इज आर अगेन एंड द वैल्यूज आर 0 to पाई वेयर 0 and पाई आर नॉट इंक्लूडेड. आप इस तरह से वैल्यू फाइंड करके देख सकते हैं. सो दिस ऑल हैव द पर्टिकुलर मैथमेटिशियन ऑलरेडी हैव प्रूव्ड और गॉट फ्रॉम द ग्राफ. तो जैसे हमने साइन ग्राफ आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, उसी तरह से आप कॉस टेन एंड सब ग्राफ के बारे में जानते हैं. द सेम ग्राफ यू कैन प्लॉट एंड गेट द कंडीशंस लाइक दैट एंड नियरर टू ओरिजिन ढूंढ के चलिए 0 के आसपास. ठीक है, जो जल्दी से आपका क्लिक करे, जल्दी से आपको याद आ जाए. ओके, द नेक्स्ट इज सेकेंड वर्स. सेकेंड वर्स की कंडीशन होती है इट इज -∞ to -1 एंड union 1 to infinity. Similarly cosec will be having this holding the same domain -∞ to 1 and union 1 to infinity, क्योंकि आपको मालूम है साइन 90 1 होता है तो कोसेक 90 भी 1 होता है. ओके, वेयरएज वैसे ही cos 0 1 होता है तो sec 0 इज ऑल्सो 1. तो जो वैल्यूज 1 और साइन की जो 1 एंड cos है दैट कैन बी द वैल्यूज ऑफ sec and cosec also, बट ग्राफ के हिसाब से आप जानते हैं कि ये -1 और +1 तक ही होल्ड करेगा, उनके बीच की वैल्यूज नहीं होल्ड करते. अब इसका रेंज कैसे आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, बस इसी का सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस है. यू रिक्वायर्ड दीज थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड. ओके, नाउ यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिए ज़रा. आपके पास ये -π/2 एंड +π/2 तो कोसेक होल्ड कर रहा है. आपको मालूम है सेक भी -π/2 एंड +π/2 होल्ड कर रहा है, क्योंकि उस सेक भी -1 और +1 होल्ड कर रहा है. मतलब cos 0 cos पाई जैसे डिफाइन है 0 एंड पाई पे cos डिफाइन है, वैसे सेक भी डिफाइंड है. पर ऐसी बीच में इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए सेक इज नॉट डिफाइंड? आपको मालूम है, अगर आप ग्राफ को चेक करें, इफ़ यू आर चेकिंग द ग्राफ यू आर नोइंग दिस थिंग कि ये 0 रेडियन है, π/2 है, दिस इज पाई. ये बेसिक ग्राफ आपको हमेशा याद रखना है, 3π/2 एंड दिस अगेन इज 2π. तो आपको मालूम है कि cos 90 अलोंग वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन पे cos की वैल्यू 0 होती है. सो व्हाट अबाउट 1/cos? इट इज नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली. तो सेक की वैल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट नहीं होगा क्योंकि नॉट डिफाइंड है वो. तब हमें उस चीज़ को हटाना पड़ेगा. तो व्हाट टू डू, एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस इंटरवल इज ऑल्सो अ सेट. सेट का एक सबसेट ही होता है ना, सेट का ही एक ही फॉर्म है. तो हमें सेट में से सेट माइनस करना है. कैसे? आई विल बी राइटिंग 0 क्लोज इंटरवल 0 to पाई एंड उसमें से मैं सेट जिसके अंदर क्या है π/2, जो cos π/2 0 होता है, इसलिए सेक नॉट डिफाइन यहाँ आएगा तो उसे माइनस कर दिया हमने. इन द सेम मैनर कोसेक में साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है. तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास वैल्यू गिवन है, दिस इज -π/2 टू +π/2, यहाँ से आप 0 को माइनस कर दीजिए. याद रखिए जब आप टर्म्स को रेडियंस में ले रहे हैं तो ऑल रेडियंस विल बी सेपरेटेड बाय रेडियंस. ओके, नाउ these are the principal values and principal values branches. The whole chapter is depending on them. इस तरह से आप इन पे अगर ये पर्टिकुलर रेंज में है तो और बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस वी कैन फॉलो. ओके, तो लेट्स गो फॉर दिस. और इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए.
द नेक्स्ट इज, अब आपने क्या जाना अभी तक कि साइन इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब होल्ड करते हैं कब करते हैं, जब वो वन वन बाइजेक्टिव साइन, वैसा आपने पर्टिकुलर उसका ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस पे वो इनवर्स फंक्शन होल्ड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये इसको आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस या टर्म्स कैसे, प्रॉपर्टीज़ हम कैसे जानेंगे, तो उसके लिए फिर से हम जाते हैं एक बेसिक कंसेप्ट जो आपको याद रखना ज़रूरी है. आपने देखा है साइन ऑफ x इज इक्वल टू वाई. अब इस तरह से लिखा है तो वैल्यूज़ आपको, और वी कैन से एज, इस तरह से भी देख लिया. अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ x, अगर मैं कोई एक जनरल फंक्शन ले लो, अब तो दो अलग अलग फंक्शन की बात हो रही है ना. आई कैन टेक अनदर फंक्शन एज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई इफ आई एम टेकिंग टू फंक्शंस. अब हमारे पास, अब इस चैप्टर में हमें इस तरह के फंक्शंस को डील करना, बट कहीं ना कहीं साइन का भी कंसेप्ट आएगा. सो साइन फंक्शन जब आप लेके चलते तो ये क्या होता है, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू नंबर यू यूज टू गेट, isn't it? Sine of angle you are getting as a number. And here sine inverse of the number, if you want you can keep in the same format. We can write y and x here. अगर मैं इसी फंक्शन से रिलेट करना चाहूँ तो साइन इनवर्स ऑफ, अभी y क्या था, मेरा नंबर था, तो आई एम टेकिंग साइन इनवर्स ऑफ नंबर, है ना. जब मैंने लिया साइन ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो साइन ऑफ एन एंगल वी यूज टू गेट एज नंबर, ओके. और तब साइन इनवर्स ऑफ नंबर क्या मिलता है, एक एंगल. इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, इस बात को याद रखते हुए चलिए. तो कोई भी डेफिनेशन आपके पास होगी तो आपको फटाक से क्लिक करेगा कि मुझे अभी एंगल चाहिए कि मुझे नंबर चाहिए. इज इट ओके? नाउ लेट्स गो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. The first property is, if I have sine inverse of sine theta, और x भी लिया जा सकता है हमें, ये आंसर मुझे थीटा मतलब साइन इनवर्स ऑफ एंगल लिया मैंने, और आई हैव टेकन साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो ये मुझे सेम आंसर थीटा कब देगा, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. जो ये आप जानते हैं, आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस डोमेन एंड रेंज भी निकाला हुआ है उसका, यू आर अवेयर ऑफ दीज कंडीशंस. तो ये प्रॉपर्टीज कब फुलफिल होती है, आप जानते हैं. FOG ऑफ x की वैल्यू निकालना किसी भी फंक्शन का, और इन जनरल इफ़ यू वांट टू राइट, आप f इनवर्स ऑफ f अगर आप लेते हैं किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन विद इट्स इनवर्स, तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, isn't it? तो वैसे ही जब साइन इनवर्स का साइन से आप कंपोजिशन फाइंड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा पर्टिकुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो तभी हमारे पास यहाँ बस ओनली x बचा, ओके. और वी कैन राइट थीटा हियर, वी आर राइटिंग थीटा हियर. सो सी दिस चिल्ड्रन, कब होगा आपको मालूम है कि साइन तो इनफाइनाइट फंक्शन एक्सटेंड होता है, उसमें डोमेन पे इनफाइनाइट वैल्यूज कैन बी टेकन. तो हमने जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिए उसी के लिए साइन इनवर्स की डेफिनेशन फुलफिल हो रही थी ना. इसीलिए जब थीटा विल बिलोंग टू -π/2 टू π/2, देन ओनली दिस प्रॉपर्टी विल बी डिफाइंड. द सेम केस विल बी विद कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा. इज थीटा कब होगा बताइए ज़रा आप. देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब रेंज के आप कंसेप्ट लेके चल रहे हैं तो उन्हीं ब्रांचेस में उन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज़ को थीटा को बिलोंग करना चाहिए, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द सेम कंडीशन. सो थीटा शुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π, isn't it? इसी तरह से आप tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा ला सकते हैं. वैसे ही cot इनवर्स ऑफ cot थीटा यू कैन गेट एज थीटा along the particular ranges. जो भी चीज़ें आपके पास वैल्यू दिख रही हैं उस वैल्यूज़
को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, एंड यू विल बी गेटिंग दीज वैल्यूज. दिस इज कोसेक इनवर्स थीटा. भी आपको उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब को ध्यान में रखते हुए आपको वैल्यू चेक करना है कि आपका उस ब्रांच में वैल्यू लाई कर रहा है कि नहीं, तभी आपको ये आंसर थीटा मिलेगा. एंड द सेम थिंग विल बी विद सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा ऑल्सो. ठीक है. सो ये आपकी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टीज. ऐसी कुछ एक प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस करेंगे एंड उनको साथ में जानते हुए देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. एंड हर चीज़ में याद रखिएगा, हर एक बात में आपको इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बहुत याद करके रखना है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x. ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई आपकी. अभी पहले आपने क्या लिखा था, f inverse of f x. You have got it as x because f and f are holding the inverse of each other under the certain conditions. हमेशा उस चीज़ को याद रखिएगा. वैसे अब मैं लिख रही हूँ f of f inverse is again will be I. तो f of f inverse x will be x. ये आपको रूल मालूम ही है. So same condition I have got from here, but under the condition what? X should belong to -1 to +1. Okay? और इसी तरह के बाकी सारी conditions, अब इसमें डोमेन की तरफ ध्यान देंगे आप. इसी सारी कंडीशन, इसी तरह की बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए हमें मिल सकती हैं. जैसे हमें यहाँ पे x belongs to -1 to +1 मिला. Similarly cos of cos inverse x will be x if x belongs to -1 to +1. Tan of tan inverse x is x for all real x, है ना. x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड है. The cot will be same as real tan inverse. Cot inverse x will be x when x belongs to R. Okay. And cosec of cosec inverse x is equal to x. जब आपको मालूम है कि x belongs to -infinity to -1, the same condition -infinity to -1 union 1 to infinity, ये दोनों ही sec and cosec के लिए सेम कंडीशन अप्लाइड है. ठीक है. they will be holding the same conditions. So this is the another property. और कुछ देखते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज हम. तो जब हम सारी प्रॉपर्टीज जान लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है. लेट्स गो फॉर इट. सो थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 3 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और जनरली बाकी तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और रेंज डोमेन को देख के आपने जान ली कि किसमें वैल्यू क्या होती है. अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको कैसी वो वैल्यू आती है, दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हेन यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. कैसे? अब देखिए, फर्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर साइन. अब फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंडीशंस के लिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स सेम पैटर्न होल्ड करते हैं. वैसे ही बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम पैटर्न होल्ड करते हैं. तो लेट अस गो फॉर इट. अभी देखते हैं वैल्यूज. आई एम हैविंग साइन इनवर्स ऑफ -x. अगर इनकेस मेरे पास नेगेटिव ऑफ x आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आती है? लेट अस चेक इट आउट. तो ये आंसर आपके पास आता है -sin इनवर्स x. कैसे आया? लेट्स गो फॉर. अब अगर आप चाहें तो आप ग्राफ के हिसाब से भी टैली कर सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस, आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्रिक की मालूम है, तो आप उन एलिड एंगल्स की क्वाड्रेंट रूल्स का यूज़ करके भी इसे सॉल्व किया जा सकता है. सो लेट अस गो फॉर द थिंग. लेट प्रूफ आई एम टेलिंग यू, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा. अगर मैंने x को साइन थीटा एज्यूम किया, ठीक है, तो व्हाट अबाउट -x?
माइनस एक्स विल बी माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी देखनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आपको मालूम है कि साइन कब माइनस साइन थीटा होता है, व्हेन आई एम हैविंग साइन इनवर्स थीटा। अगर मैंने साइन ऑफ माइनस थीटा लिया तो आई विल बी गेटिंग माइनस साइन थीटा एज द आंसर। ये प्रॉपर्टी आपको ट्रिग्नोमेट्री में मालूम है, तो वी विल बी यूजिंग दिस कंडीशन हियर। तो इन प्लेस ऑफ, अब ये जो कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं दे आर अंडर द गिवन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओनली। मतलब आपको मालूम है कि x उस पर्टिकुलर वैल्यू पे x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, और मेरे पास ब्रांच भी उसी में है। अंडर द कंडीशंस ओनली आई विल बी गेटिंग द आंसर, याद रखिएगा इस बात को। तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी इन प्लेस ऑफ, इफ आई एम हैविंग, अगर साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आई विल बी गेटिंग व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा विल बी देयर, एज यू आर अवेयर ऑफ द डेफिनेशन। तब इन प्लेस ऑफ, अब मैं शिफ्ट करूंगी, ये डेफिनेशन मेरे पास है, इसमें मैं वैल्यूज शिफ्ट करूंगी। कैसे? इन प्लेस ऑफ साइन थीटा आई विल बी राइटिंग x, एंड इन प्लेस ऑफ थीटा आई विल बी राइटिंग साइन इनवर्स x। सो देखते हैं क्या आता है, साइन ऑफ माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस x, isn't it? तो अब आपको एक रिलेशन बताना है ना इसका। तो फिर से हमें मालूम है कि दिस फंक्शन f एंड f इनवर्स है, तो इनका कंपोजिशन भी एडजस्ट होगा, इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो आई कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप एज माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, क्योंकि हम निकाल उस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ले चुके हैं, इसलिए साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई कैन राइट साइन inverse, if I'm writing this thing here, I'll be getting sine inverse of minus x. The second is cos inverse of minus x। अब हमें चेक करना है कि cos inverse of minus x किसके इक्वल होता है। तो जैसे हमने sin inverse of minus x लिया तो sin minus थीटा का कंसेप्ट लेके चले। Let's go for the concept of cos minus theta. अब प्रूफ तो हम लिख रहे हैं, बट आई एम नॉट राइटिंग द आंसर। आप खुद जानेंगे कि आंसर क्या आता है। लेट्स सी दिस थिंग। देखिए, यू आर अवेयर ऑफ cos माइनस थीटा। क्या ये cos थीटा होता है कि माइनस cos थीटा? जैसे हमारे पास था साइन माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा। तो मैं cos को भी ऐसे ही लिख सकती हूँ कि cos माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा? नो, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec आर पॉजिटिव। यू आर अवेयर ऑफ cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा, isn't it? तो हमें तो यहाँ पे नेगेटिव कुछ वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा कुछ चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें cos फंक्शन नेगेटिव होता है। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ब्रांच ऑल्सो। ये वैल्यूज को भी ध्यान रखना है कि आपको 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू लेनी है। तो व्हाट टू डू, आपको मालूम है कि इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल कैसे लेके चलते हैं हम? वी विल बी टेकिंग cos पाई माइनस थीटा, दैट इज 180 माइनस थीटा। कितना होता है? cos थीटा होता है ना। सो आई विल बी टेकिंग दिस कंडीशन। ठीक है, इससे मुझे आंसर मिलेगा। मुझे नेगेटिव वैल्यू सर्च करनी है, तो आई विल बी यूजिंग द क्वाड्रेंट जहाँ उस पर्टिकुलर ब्रांच को भी सेटिस्फाई करे, पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, और नेगेटिव आंसर भी आ जाए। तो लेट्स गो फॉर इट। अब मैंने फिर से वही काम किया कि लेट cos थीटा हैव टेकन एज x। ठीक है, तो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा ये। अब ये वैल्यू अगर मैंने इस कंडीशन में पुट करी तो मुझे क्या मिल रहा है? I am getting cos pi minus cos inverse x is equal to minus x on putting the values। ठीक है, जब आपने वैल्यू पुट कर दी, अब इसको फिर से सिंस इनवर्स इज एग्जिस्टिंग आप उस तरफ ले जाइए उसे। तो और एक्चुअली अप्लाई द कंडीशन एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर एज pi minus cos inverse x is what? Is cos inverse of minus x. So the condition that you have learnt is
cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. As a sign, it is not minus cos inverse x. Is it okay? Now, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर आप चाहें तो इसी तरह से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, बट अगर आप उसको जस्ट रिमाइंड करके रखना चाहें तो जस्ट रिमाइंड दिस कि साइन कोसेक tan वर्क्स in the same manner and cos, sec and cot works in the same manner. So I am writing sine inverse of minus x is equal to minus sine inverse x, that I have already proved. Here cos inverse of minus x is what? It is pi minus cos inverse x. सिमिलरली tan इनवर्स भी कैसे वर्क करेगा? साइन जैसा. तो आप इस तरह से इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं कि इफ़ साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो tan भी वैसा ही होता है. आपको इन दो बस वैल्यूज़ को याद रखना है और बाकी को आप रिलेट कर सकते हैं. यू विल बी गेटिंग tan इनवर्स एक्स. सिमिलरली कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स. नाउ विल गो फॉर द रेस्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स देखते हैं क्या मिलता है. सो आई एम टेकिंग कॉट इनवर्स माइनस एक्स. इट विल बी वर्किंग सेम एज कॉस, तो आई विल बी गेटिंग द सेम पैटर्न. दिस इज कॉट इनवर्स एक्स एंड sec inverse minus x is also giving us pi minus sec inverse x. Is it okay? So these are the पर्टिकुलर टर्म्स जिसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स गो फॉर द अदर कंडीशन ऑल्सो. एक और प्रॉपर्टी हम लर्न करते हैं और आप वो प्रॉपर्टीज़ को लिख के रखिए और जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो इन तीनों चारों प्रॉपर्टीज़ को याद करते हुए आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो लेट अस गो फॉर द फोर्थ प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ इट? सो आई एम राइटिंग इट. इसकी तरफ ध्यान ना जाए आपका. The fourth property is, okay, आपको मालूम है रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होता है? You are aware of they are the reciprocal of each other. I can write cosec theta as 1 by sin theta. इसी तरह से पेयर ऑफ इनवर्स टर्म्स. अब देखिए, याद रखिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स अगर आप थीटा लिख रहे हो, x लिख रहे हो बेटा, दिस इज नॉट 1 बाय साइन x. दिस इज अ पर्टिकुलर नोटिफिकेशन फॉर द फंक्शन. ओके, दिस कैन नॉट बी 1 बाय साइन x और कोसेक x. तो हमेशा इसको याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं, आप उनको आपस में रिलेट नहीं कर सकते. यहाँ कोसेक ऑफ एन एंगल निकाल रहे हैं, वेयर इज साइन इनवर्स ऑफ क्या निकलता है? एक नंबर. तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा. ठीक है, अब एक कंडीशन यूज़ करते हैं और प्रॉपर्टी से हम करें, नहीं तो एक ट्रायंगल रूल होता है जिसको फॉलो करके हम सॉल्व कर सकते हैं. आपको मालूम है कि इफ़ आई हैव टेकन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड जो भी मैं बात कर रही हूँ हमेशा याद रखिए, इन्वर्स फंक्शन की जब मैं बात कर रही हूँ तो इस टेबल को मैं दिमाग में रखते हुए जो भी आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ यहाँ स्पेसिफाई करके मैंने नहीं लिखा उन कंडीशंस को. Okay, you have to keep these values in mind. Okay, using these values only, under these condition only we are writing all the properties. तो अगर मेरे पास sin theta is equal to x है, so what about cosec theta? It is 1 by x, and if the inverse particular range के अंदर है, inverse hold कर रहा है, तो I can write theta is equal to sin inverse x, isn't it? और वैसे ही थीटा इज इक्वल टू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल बी गेटिंग कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स. तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई चिल्ड्रन? यू कैन सी दिस दैट अब दोनों ही थीटा है. अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करूँ तो व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग साइन इनवर्स एक्स एज कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, इजंट इट? वैसे ही अगर मैंने लिखा कोसेक
inverse x, I can get it as sin inverse 1 by x under the conditions. मैं बार बार वो बात बोल रही हूँ, याद में रखिए कि ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इसी तरह से बाकी भी आप रिलेट कर सकते हैं. यू कैन राइट sec इनवर्स ऑफ x एज cos इनवर्स ऑफ 1 बाय x, देन cot इनवर्स ऑफ x as tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x. ठीक है, दीज आर जो इनवर्स कंसेप्ट है, ये प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल कंसेप्ट दे रही है आपको. अब यहाँ पे आप इन बातों को ध्यान रखिए कैसे चेंज हुआ, ठीक है. तो अब इसको मैं नेक्स्ट आपको समझा रही हूँ. एक और पैटर्न आप लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इनमें कंसेप्ट में और बताऊंगी कि किस तरह से आपको रिकॉल करना है या याद रखना है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पैटर्न. इन केस किसी क्वेश्चन में आपके पास ऐसा आ गया है, you are having sin inverse x and you have to convert it in terms of cos inverse. कैसे करेंगे, क्या रिलेट, किस तरह से आप रिलेट करना चाहेंगे उसे. सो लेट्स गो फॉर द ट्रायंगल रूल. आप बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स. राइट ट्रायंगल का यूज़ होता है ना उसमें जनरली. तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आप राइट ट्रायंगल को ही याद करते हैं. तो लेट अस गो फॉर, जब भी ये एक ऑल्टरनेट मैथड है टू गेट द वैल्यूज़. कैसे, अगर मैंने यहाँ पे कोई एंगल थीटा लिया है, so this is, you are aware of what, perpendicular or the side opposite to the given angle, then the side adjacent to the given angle. base की तरह हम वर्क करते हैं उसके लिए. and this one is called hypotenuse. आपको मालूम है ये सब चीज़ें. अब कहीं भी आपके पास दी हुई है साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन इनवर्स x लिखा अगर मैंने थीटा, if I have taken sin inverse x as theta, तो obviously x will be sin theta. तो अगर x sin theta है तो I have to write in terms of, this is a trigonometric ratio, no? So I have to write this as x by 1. And as per the ratio, I am having this value as x and this one is 1. तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, अगर आपको मालूम है कि दो साइड्स ट्राइंगल की गिवन है, तो यू कैन गो फॉर, यू कैन सर्च फॉर द थर्ड साइड ऑल्सो. आप ढूंढ सकते हैं उसको. तो क्या आएगी थर्ड साइड, आपको मालूम है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल रूट, isn't it? तो अब बताइए ज़रा cos थीटा कितना हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू, क्या होंगी बताइए ज़रा. द वैल्यू ऑफ cos थीटा एज पर द फिगर शुड बी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन आई विल बी गेटिंग थीटा इज इक्वल टू क्या, रूट ओवर cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मिलती है कि नहीं ये वैल्यू आपको. तो आप फिर से जैसे आपने पिछले प्रॉपर्टी में कंपेयर किया था, यू कैन कंपेयर लाइक साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. उसी तरह से अगर मेरे को इसे tan के फॉर्म में लिखना है, तो मुझे मालूम है कि tan थीटा यहाँ से क्या होता है, tan थीटा इज x बाय दिस वन. So I am getting tan inverse of x by root over 1 minus x square. ठीक है. सिमिलरली इसी तरह से हम सेक कोसेक कॉट भी इन वैल्यूज को रिलेट करके इस ट्रायंगल का यूज करके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो द कंडीशंस दैट यू आर गेटिंग आर, तो ये इस प्रॉपर्टी में आपके पास कंडीशंस क्या मिल रही हैं. You are getting sin inverse of x that can be converted in terms of cos inverse of root over 1 minus x square. This can be converted as tan inverse of x upon root over 1 minus x square or cot inverse. I am aware of the reciprocal of, मतलब values को अगर आपने ब्रैकेट की values को reciprocate कर दिया तो क्या मिल रही है मुझे. It is root over 1 minus x square upon x. सिमिलरली कोसेक इनवर्स तो साइन से रिलेट करके आप जानते ही हैं. कोसेक इनवर्स इज 1 बाय एक्स के साथ में हमारे पास 1 बाय एक्स आ जाएगा. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स. सिमिलरली सेक इज व्हाट, अब कुछ याद ना रिलेट नहीं कर पाते तो इस ट्रायंगल को देख के आप बना लीजिए. सेक इज व्हाट, सेक थीटा क्या होता है, इट्स द रेशियो, इट्स रेसिप्रोकल वी कैन से ऑफ कॉस, नहीं तो it is hypotenuse upon the side adjacent to the right angle or lying in between the right angle and the angle given.
सो वी आर हैविंग दिस एज 1/√1 - x²। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू के किसी भी टर्म में अगर आपको दी हुई है वैल्यू और आपको दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है और आपका कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज। अब इससे बेसिकली आपको कंसेप्ट क्या आया, एज यू हैव लर्नड लाइक, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ अ नंबर इज एंगल, ये आपको याद रखना है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ नंबर भी उस पर्टिकुलर रेंज को बिलोंग करना चाहिए, -1 से +1 डोमेन को बिलोंग करना चाहिए ना। तो साइन इनवर्स ऑफ जो भी साइन इनवर्स के साथ रहता है वो क्या होगा, आपको मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स होता क्या है, इट इज, अगर मैं इन शॉर्ट देखूं, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p/h। तो अगर मैंने यहाँ लिखना है तो आई कैन राइट दिस लाइक साइन इनवर्स ऑफ p/h ऑल्सो ना। दिस इज जस्ट फॉर आपको कैसे याद रखें, कैसे आपके लिए मैथ्स कन्वीनियंट हो जाए, तो इन पैटर्न्स को आपको याद रखना है। तो देखिए जब भी साइन इनवर्स के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो अगर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज गिवन टू यू, यू विल बी टेकिंग इट एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको फिर वैल्यूज़ ढूंढने में बहुत इजी हो जाएगा और आपको कन्वर्ट करना भी बहुत जल्दी से आ जाएगा। ओके, सिमिलरली कॉस इनवर्स के साथ आपके पास जो भी है वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा ऐसे याद रखिए आप इसे, तो जो भी एंगल आएगा उसको आप रिलेट कर सकते हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के लिए आपको हर बार एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट लेके आने की ज़रूरत नहीं। आप याद रखिएगा कि साइन इनवर्स के साथ क्या होता है, बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन इनवर्स के साथ क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यू हैव टू टेक अपॉन हाइपोटेनियस एंड द एंगल यू विल बी गेटिंग एज आंसर, इजंट इट। नंबर, एंगल, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ऐसे आगे जितने भी हम फॉर्म्स पढ़ेंगे कहीं ना कहीं सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंट फॉर्मूलाज से रिलेट करता है, और उसी को अगर आप याद रखें तो यू विल बी गेटिंग, बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला को याद रखना। ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस नाउ। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतनी सारी पूरी आपकी प्रॉपर्टीज़ है उन पे बेस्ड है। मैंने आपको बता तो दी एक साथ पूरी प्रॉपर्टीज़, बट चलिए कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो एक एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करेंगे, आप उसे याद रखिए। और अपने पास हमेशा सारी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बहुत वास्ट चैप्टर है, अलग से अपने पास प्रॉपर्टीज़ पूरी मेंशन करके रखिए ताकि जब ज़रूरत हो तो यू कैन सी, बट it is better to by heart things. So let's start with the basic questions. The first question is, find the principal value, the values which are belonging to the principal value branch are called principal values. Find the principal values of, ठीक है। First question is साइन इनवर्स 1/2 अगर आपको दिया है, ठीक है, तो आप फिर से उस चीज़ को याद करिएगा। साइन, अगर थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स थीटा होगा। उस थीटा को याद कर दिमाग में लाइए, क्योंकि आपको उस साइन थीटा की वैल्यू मालूम है। अगर आप फिर से इसको सोचिए कि यहाँ पे अगर थीटा है तो साइन थीटा हाफ कब होता है, इस तरह से अगर आप सोचें तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ना, ठीक है। साइन थीटा, साइन के एंगल, किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू हाफ होती है, वैसे तो होते बहुत सारे एंगल्स हैं पर हमें उस रेंज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन थीटा आपको मालूम है कि साइन 30 इज 1/2, इजंट इट। और इन जनरल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक एप्लीकेशन पैटर्न में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वी विल बी टेकिंग द रेडियन वैल्यूज़। यहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंगल्स डिग्रीज में नहीं है, रेडियंस में है, सो आई हैव टू टेक द रेडियन वैल्यूज़ ऑफ इट। तो 30 को हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ π/6। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6, as we know that sin π/6 is 1/2। इस तरह से आप उसे रिलेट करें, as
sin pi by 6 is 1 by 2. Is it okay? Similarly, we can go for cos inverse of 1 by root 2. अब तो आपको इसको जल्दी से याद हो जाएगा. अगर आप चाहें तो आप इसको एक और पैटर्न को यूज कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं cos इनवर्स. अब ये क्या होता है? cos कितना? पाई बाई 4 है ना. और आपको मालूम है कि पाई बाई 4 उस पर्टिकुलर रेंज को बिलोंग कर रहा है कि नहीं. तो यू विल बी गेटिंग द आंसर एज, आपने को मालूम है कि cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई के बीच में उसका रेंज है. तो आपने इस वैल्यू को चेक करना है वेयर इज इट बिलोंगिंग, वेदर इट इज़ बिलोंगिंग इन दैट पर्टिकुलर रेंज और नॉट. 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू आ रही है कि नहीं. सो हमारा आंसर सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए वी कैन गेट बोथ द प्रॉपर्टीज वी कैन अप्लाई. ऐसा भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. You have learned the property now, that is cos inverse of cos theta is theta when theta belongs to the particular principal value branch. So that condition can also be applied, or you can directly go for the particular values. Let's go for the next. अभी मुझे दिया हुआ है tan inverse of minus root 3 दिया है. अगर आपको अब यहाँ माइनस की कंडीशन आ जाती है. आपने अभी एक प्रॉपर्टी लर्न करी, या तो आप उसको पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से आप ढूंढिए उसकी वैल्यू को, नहीं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके जल्दी से आंसर ले आएँ. आपको मालूम है कि tan इनवर्स ऑफ minus x is minus tan inverse x. You have learned in the third property this thing. So we can apply directly this condition that tan inverse of minus root 3 will be minus tan inverse of root 3, and tan inverse of root 3, tan कब root 3 होता है? tan pi by 3 is root 3, so tan inverse root 3 is pi by 3. So ultimately your answer is minus pi by 3. इस तरह से आपको ये आंसर मिल सकता है. ठीक है. Let's go for a board question that was asked in board 1 mark question था वो, that is tan inverse of 1 plus sin inverse of minus half plus cos inverse of minus half. This is the next question. अब इसको तो हमें जल्दी जल्दी आंसर लिखना है ना. tan inverse 1 कब होता है? tan pi by 4. So we can directly write pi by 4. जब आप इस कंसेप्ट को सीख जाएंगे, tan inverse of 1 is theta when tan theta is 1, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan कब 1 होता है? pi by 4 पे. तो you can get the answer in this manner. Sin inverse of minus x if I have to search for, तो sin inverse of minus x आपको मालूम है कि minus sin inverse x होता है. पहले वो वैल्यू पुट कर दीजिए. एंड व्हाट अबाउट cos inverse of minus x? अगर मैं माइनस की प्रॉपर्टी यूज करूँ तो आई एम अवेयर ऑफ cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x, that is half. Okay, so you can apply this condition to get the answer. अब वैल्यू पुट करते हैं. It is pi by 4 minus sin inverse half is what? That is pi by 6 होता है कि नहीं? Sin 30 plus pi minus pi by 3. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. You will be getting answer. क्या मिल रहा है देखिए ज़रा आप. दिस पाई इज़ 180. दिमाग में रखते जाइए, एंगल में जल्दी सॉल्व होता है ना. 180 में से 60 माइनस 60 एंड 30 को आपने माइनस किया. दिस इज 60 एंड 30, तो आपको 90 मिलता है. दैट इज़ पाई बाई 2, एंड पाई बाई 2 इज़ 2 times of पाई बाई 4. सो आई एम गेटिंग 3 times of पाई बाई 4 हियर एज द आंसर. इज इट ओके? सो इन दैट मैनर यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर. 1 mark क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं आपको उसको बहुत शॉर्ट मेथड में सॉल्व करना है. ओके. So this was one of the questions related to find the principal value of the particular inverse trigonometric function. Let's go for the next one. The next pattern is अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुका है. दिस इज द नेक्स्ट वन इज cos, just a moment,
The next is tan inverse of 2 cos 2 sin cot इनवर्स x. ठीक है, अब देखो आपको दिख तो इतने सारे चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी दिख रहे हैं. देन आप यू आर फाइंडिंग 2 sin inverse. This I am getting as 2 sin inverse half this value. This is a question. Now see this, your question is tan inverse of 2 cos 2 sin inverse half. Let's solve it. दिखने में बहुत सारे कुछ वैल्यूज दिख रही हैं, बट आप जब प्रॉपरली आप वैल्यू पुट करते जाएं, इट्स अ वेरी इजी टास्क. 1 मार्क क्वेश्चन है फिर से ये. तो क्या मिलेगा, आपने tan इनवर्स लिखा यहाँ पे और आप ब्रैकेट से सॉल्व करते जाइए कि क्या मिलेगा. 2 cos, अब 2 sin आपने लिखना है. साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, π/6, isn't it? और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 2 cos π/3 and cos π/3 you are aware of half होता है. tan inverse of 2 into half will give you 1, and tan inverse of 1 is what? tan कब 1 होता है, when it is π/4. when angle is π/4, the value of tan that π/4 is 1. So I will get the answer as π/4. This is the pattern. Okay. So these were the question to find the principal value of a particular function. Let's go for the next one. इसी टाइप से the next properties we are applying. कौन सी प्रॉपर्टी अब हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा you are aware of is theta under the given condition. इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका यूज़ करके दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज वी आर यूजिंग नाउ. वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस लाइक दीज पैटर्न्स. इसमें कॉस भी आएगा, tan, cot एंड एवरीथिंग. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. अगेन द सेम कंडीशन इज देयर टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ. ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज, अगर मेरे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स, इंस्टेड ऑफ गिवन द वैल्यू मेरे पास एंगल है, तो देखिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 इफ आई एम हैविंग. ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले आपको मालूम है कि f ऑफ f इनवर्स, फर्स्ट कोई भी दो इनवर्स फंक्शंस अगर आप लेके चलते हैं तो उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है. बट अंडर द कंडीशंस, अगेन आई एम रिमाइंडिंग दिस थिंग टू यू, वो कंडीशन हमेशा याद रखिएगा. तो पहले तो आप देखिए एंगल थीटा उस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं. एंगल की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है कि नहीं है. -90 एंड +90 के बीच में आपका 60 बिलोंग करता है. सो यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट आंसर एज π/3. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज साइन इनवर्स ऑफ, अब मैंने ले लिया चेंज की वैल्यू साइन 2π/3. अब बताइए ज़रा. सो द वैल्यू ऑफ 2π/3 इज व्हाट, डिग्रीज में अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, π/3 इज 60, इट्स 2 टाइम्स इज 120. अब 120 तो 90 से बड़ा हो गया, सो इट विल नॉट बिलोंग. तो आई विल नॉट गेट द आंसर एज 2π/3. याद रखिएगा हर बार साइन इनवर्स ऑफ साइन जो थीटा दे ज़रूरी नहीं है. If it is not belonging to the principal value branch, तो we have to adjust it. Okay, so this cannot be the answer. तब हमें कैसा करना है, तो again we will be learning, मतलब हम recall करेंगे किसको, आपका quadrant rule को, lead angles के आपस में relation को. तो आपको मालूम है कि sin inverse of sin 2π/3 मुझे उस particular range में लेके आना है. तो मैं क्या लिखूंगी, I can write π - π/3 for 2π/3, isn't it? साइन 120 आपके पास है, 180 - 60 इसे लिखा जा सकता है. तो आई एम गेटिंग द आंसर एज साइन इनवर्स ऑफ, सॉल्व करिए, साइन 180 - थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा. ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आई विल बी गेटिंग साइन π/3. अब आ गया ये आपके उस पर्टिकुलर रेंज में. सो योर आंसर नाउ इज π/3. ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. उसी तरह अगर आपको एक नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको दे रही हूँ, देखिए ज़रा 8, ये मिस्टेक जो होती है, देखिए यू आर हैविंग कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3 विद यू.
ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया साइन को, तो बिना कुछ सोचे कुछ ऐसे हड़बड़ी में गलतियाँ हो जाती कि इसको हम पहले अरेंज करते हैं, ठीक है। तो पर सबसे पहले आप देखिए कि इफ़ पर्टिकुलर वैल्यूज इज गेटिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेटिस्फाई हो रही है तो नो नीड ऑफ चेंजिंग, नो। अब देखिए ये कितना है, अभी आप जान गए इसको 120 है, एंड कॉस का ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 180, 0 to पाई, तो ऑब्वियसली दिस टर्म इज लेस देन पाई, और वी कैन से दिस इज 2/2 ऑफ पाई ना। आप इस तरह से भी इसे चेक कर सकते हैं, अगर आप 180 ना सोचें, एंगल को डिग्रीज में ना कन्वर्ट करें, रेडियंस में रहते हुए। 2/3 जब न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है तो टर्म विल बी लेसर देन पाई, इस तरह से याद करिएगा, तब आपको कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर डायरेक्टली गेटिंग द आंसर। सो द आंसर इज 2π/3, ओके। Now if I have taken the next term as cos inverse of cos 7π/3, children, बताइए ज़रा आप। अब आपने तो ले लिया 7π/3, ओके। 7π/3 क्या है, न्यूमरेटर 7/3, ऑब्वियसली जब 1 से बड़ा होता है तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन पाई, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं कर रहा। तब आप इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, अगेन यू विल बी अप्लाइंग द क्वाड्रेंट रूल, ओके। तो वी कैन अप्लाई हाउ, कैसे अप्लाई करें बताइए ज़रा। आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 2 बार, नहीं तो 3 बार में आप 4π से अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं 4π में भी 5 आएगा। 3π, आपको क्वाड्रेंट रूल मालूम है, यू कैन अरेंज इट लाइक दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π, दिस इज 3π एंड सो ऑन। इफ आई एम राइटिंग 3π माइनस थीटा, देखो 3 3 9 हो जाता है ना, so I am writing this as cos inverse of, or for our convenience I can adjust it in other manner also, ऊपर में adjust करूँ इसे, तो I will be getting cos of 3π minus 2π/3। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, बोलिए ज़रा। cos 3π minus 2π/3 is what, 3π कहाँ आया, सो इट्स अ नेगेटिव कॉस थीटा, यू आर गेटिंग ना। आपने लास्ट ईयर आपने पूरी वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं, द 0 to पाई, पाई to 2π, 2π, फिर यहाँ से 3π, 3π विल वर्क एज पाई ओनली। सो दिस इज cos 3π माइनस थीटा विच इज़ माइनस कॉस थीटा, तो आई एम गेटिंग कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 2π/3। अब हमारा सीधे आंसर तो आ नहीं रहा, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो व्हाट टू डू, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा यू आर अवेयर ऑफ क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यू आर अवेयर ऑफ क्या होता है वो, दैट इज माइनस पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यू हैव लर्न दैट फॉर्मूला ना। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो आई एम अप्लाइंग द सेम कंडीशन। आई विल राइट पाई माइनस कॉस, बहुत तरीके से आप इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, यू कैन गो फॉर डोमेन रेंज, और कितने भी एडजस्टमेंट करके यू कैन गेट द आंसर। तो वन ऑफ द पैटर्न्स आई एम यूजिंग हियर, ओके। दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स 2π/3। आपको और बहुत ईजी पैटर्न्स में प्रैक्टिस हो जाती है, तो यू कैन डू दैट, एंड दिस विल गिव अस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3, and ultimately what am I getting, I am getting pi minus 2π/3, and जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो what is the answer, that is pi/3 is your answer. You can adjust the things like that also. अब pi/3 क्यों आंसर आया, as pi/3 is lying in that particular range ना, 0 से pi के बीच में pi/3 है, that's why you have got that answer, okay. The next question is, तो जो आपका बोर्ड क्वेश्चन था वो क्या था, इसको तब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। द क्वेश्चन वॉज साइन इनवर्स इवेल्यूएट था, या फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3, इस तरह से आपसे आंसर पूछा गया था, ओके। तो ये आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, यू कैन गेट द आंसर। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम हैविंग एज tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। अब बताइए इसका
3 pi by 4 is what? Pi by 4 is 45. 45 3s are 135. 135 10 की रेंज में है क्या? No, 10 is lying in between pi by 2 and pi by 2, not including them. ठीक है, तो 135 तो ज़्यादा हो गया, फिर हमें अरेंज करना पड़ेगा ऐसे किसी तरह से। तो क्या करें? दिस इज tan इनवर्स ऑफ, अब मैं ऐसे 10 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकती हूँ ना, 3 पाई बाई 4 को। तो मुझे मिल रहा है डायरेक्टली, आई एम नॉट गेटिंग आंसर, बट एक दो स्टेप्स में आंसर आ जाएगा आपके पास। यू आर हैविंग tan इनवर्स ऑफ माइनस 10 पाई बाई 4, ओके, 10 पाई माइनस थीटा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव। अब कंडीशन अप्लाई करिए, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, that I am applying here. तो क्या मिला? माइनस tan इनवर्स ऑफ 10 pi by 4. Okay, so the answer is minus pi by 4. Why? Because that pi by 4 is belonging in that particular range. ठीक है, तो इस तरह के कितने भी बड़े से बड़े या कोई भी क्वेश्चन आए, आप ये बेसिक कंसेप्ट्स को याद रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन ना हो। The next question I am giving you, cos inverse of, देखिए ज़रा, cos inverse of cos, और cos के तो बहुत क्वेश्चन हो गए, let us change. I am giving you the next question as sec inverse of sec 115 pi upon 116. बताइए ज़रा। यू कैन सी दैट ना, द कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, क्योंकि न्यूमरेटर स्मॉलर है तो वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ 5, तो इतनी बड़ी वैल्यूज में भी कंफ्यूज मत होइएगा। सो द आंसर यू आर गेटिंग, सिंस इट इज फॉलोइंग द कंडीशन, यू आर गेटिंग द आंसर व्हाट? एज 115 पाई अपॉन 116. दिस इज योर आंसर। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जस्ट सी दिस थिंग। अभी तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी की बात करी थी? टिल इट वी हैव लर्नड अबाउट साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा अंडर द गिवन कंडीशंस. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव लर्नड अबाउट साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स. कब? जब पर्टिकुलर डोमेन में फॉलो करेगा, व्हेन एक्स विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 to +1. इसी तरह की बाकी कंडीशंस भी जो हमने प्रॉपर्टी में लिखी हैं. सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस. लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न इज साइन इनवर्स 3/5. चेक करिएगा 3/5 पर्टिकुलर डोमेन बताओ. इस समय तो उसका रेंज हो गया फंक्शन का, अदरवाइज इन वैल्यूज़ को बिलोंग कर रहा है कि जहाँ भी साइन इनवर्स का आया, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? इट इज़ -1 to +1. 3/5 उसमें बिलोंग करता है ना, बिकॉज इट इज़ लेस देन 1. तो हमारा आंसर वी कैन डायरेक्टली राइट एज 3/5. ओके. सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स 15/17 अगर मुझे दिया हुआ है तो से yes I can write it as 15/17 because I have that condition कि इसकी भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना है and it is satisfying it. The next is tan of tan inverse 8. Will it be satisfying? Yes, क्योंकि R है, real number है, तो it can be 8 also. We can get that answer. Let's go for the next one. This is cos inverse of cos 5/4. जल्दी से आंसर बताइए इसका. क्या ये 5/4 होगा? अब बताइए व्हाट अबाउट 5/4? कॉस का रेशियो जब आप लेते हैं तो क्या करते हैं? हाइपोटेनियस विच इज़ द बिगर साइड. जब छोटी क्लासेस में आपने ऐसे ही पढ़ा था. और अब आप रेंज पहले से जानते हैं कि -1 से +1 के बीच में होती है. तो दिस इज़ व्हाट, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में जब हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा था, हम
क्वाड्रेंट रूल यूज़ करके उसे एडजस्ट कर ले रहे थे, एक पर्टिकुलर आंसर हमें मिल जा रहा था. बट इज़ इट पॉसिबल हियर ऑल्सो? ये पॉसिबल है क्या? नो, बिकॉज इट इज़ अ नंबर ऑफ 5 बाई, आपके पास 5 कुछ थिंग्स हैं, उसको आप 4 तो नहीं बना सकते. तो सिंस द रियल नंबर्स आर हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन नॉट बी अरेंज्ड. सो वी विल राइट नॉट पॉसिबल. ठीक है, याद रखिएगा, एंगल्स को तो हम अरेंज कर सकते हैं यूजिंग द क्वाड्रेंट रूल, बट नंबर्स कैन नॉट. अ फिक्स्ड वैल्यू दे आर होल्डिंग. सो नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है, उस रेंज को नहीं बिलोंग कर रहा, सो नॉट पॉसिबल. ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन. अब इसी तरह से एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लें हम इसके. आई एम हैविंग साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2. देखिए ये आपका क्वेश्चन है. अच्छा, रादर साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 विल बी टेकन. इट इज़ गुड, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है. सो देखिएगा, वी आर हैविंग साइन ऑफ π/3 रहने दीजिए. हम यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर अगर और जल्दी सॉल्व हो जाए तो क्या प्रॉब्लम. सो लेट्स गो फॉर इट. साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इज माइनस साइन इनवर्स x. इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ हाफ. एंड यू आर अवेयर ऑफ साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? दैट इज साइन π/3 प्लस π/6. π/3 प्लस π/6 इज वॉट? π/2 ना. Sin π/2 is 1. So in that manner, without expanding, without using the another property, we can get the answer directly. Okay, so let's go for the next question. अब तो ये जितने क्वेश्चंस अभी तक आपने पढ़े थे, इसमें आपके पास साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस, टेन एंड टेन इनवर्स का अपने कंपोजिशन पढ़ा. अब the next pattern we are learning is, if I have the next question as sine inverse of cos 12/13, आपको the next pattern you are having a sine of cos inverse. हमेशा याद रखना है ना कि inverse function के साथ angle नहीं आता, inverse function के साथ क्या आता है? number. So I have done it wrong. So let us write the question again. Sine of cos inverse 12/3, 13 एक्चुअली. तो अभी तक आपके पास कंसेप्ट क्या था? साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x अंडर द गिवन कंडीशन. अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल. ओके, बट दिस टाइम यू आर हैविंग द साइन के साथ में कॉस आ गया है भैया. नाउ हाउ टू डू इट? अगेन यू कैन रिकॉल दैट ट्रायंगल जो अभी हमने प्रॉपर्टी में आपको बताया था. तो ट्रायंगल क्या करता है? ट्रायंगल, अब मैंने राइट ट्रायंगल लिया, बेसिक कंसेप्ट लेके चले अगर हम बेसिक कंसेप्ट, एंड दिस इज द एंगल एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल आई एम टेकिंग द साइड्स. अगर मैं ऐसा लेके चलती हूँ तो व्हाट इज 12? कॉस के साथ क्या होता है? कॉस इनवर्स के साथ बेस अपॉन हाइपोटेनियस. इन शॉर्ट, अभी बेस अपॉन मतलब छोटी जनरल आपके कॉन्सेप्ट के लिए हम बेस और हाइपोटेनियस बोल रहे हैं वर्ड यहाँ पे. ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर आपने सोचा तो ये आपको परपेंडिकुलर मिलेगा. बेस आपके पास 12 है, दिस इज 13, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मालूम है. एंड नहीं तो प्रैक्टिस करिए बेटा, यू आर इन 12th नाउ. सो वी आर हैविंग 5 एज द वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर और द साइड opposite to the given angle. No? So this is what we are getting. अब मुझे यहाँ पे जब मैं रूल जो फॉलो करना है, मुझे साइन ऑफ, आई नो दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x, तो यहाँ साइन चाहिए ना. सो फॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई रिक्वायर्ड कॉस, आई हैव टू शिफ्ट दिस कॉस इनवर्स बाय साइन इनवर्स. ओके, जब कॉस ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो साइन इनवर्स क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो आई कैन राइट इट लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? 5/13. अब पहले देख लीजिएगा नंबर उस पर्टिकुलर रेंज को बिलोंग कर रहा है क्या? करेगा ही, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. सॉल्व ही नहीं होता उसके आगे ना वो. सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू एज 5/13. इस तरह से आप वैल्यूज कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस. उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग द अदर कंसेप्ट्स. Okay, the next question is,
cos of, then this is the first one, the next one I am writing as cos of tan इनवर्स ऑफ 15/8। पहले तो देख लीजिए भैया ये पॉसिबल है क्या, है, क्योंकि 10 तो रियल वैल्यू होती है, रियल नंबर होता है, इट कैन होल्ड एनी वैल्यू। सो ये रियल नंबर है, सही है, बट हमें यहाँ तो जब हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वी रिक्वायर्ड cos inverse in place of tan inverse. So again we will be taking the help of this triangle. I'll be getting ABC और I will be mentioning the ratio. tan क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा पिछली चीज़ें, it is perpendicular upon base, that is 15 यहाँ, 8 यहाँ, and let's go for the value. कितनी आएगी ज़रा बताइए, अगर आपको याद है तो आपने सही पकड़ा, it is 17 है ना, because 17 square is 289, you can solve and get the answer. and कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट आप याद करें, ज़्यादा अच्छा है वो. सो आई विल बी राइटिंग इट एज cos ऑफ tan इनवर्स को मैं cos इनवर्स में कन्वर्ट करती हूँ तो उसके साथ क्या आना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो आई एम गेटिंग 8/17. सो माई आंसर इज 8/17. ओके, सो राइट, थोड़े बड़े क्वेश्चन में जाते हैं. लेट्स गो फॉर इट. बस कैलकुलेशन बड़ा है, बाकी द बेसिक कंसेप्ट इज सेम. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग एज tan inverse of tan square sec inverse 2 plus cot square cosec inverse 3. See this children, दिखने में तो स्क्वायर है बट बेसिक कंसेप्ट ही लेके चलेंगे हम. हमें मालूम है कि इफ आई एम हैविंग साइन स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी टेकन एज साइन थीटा द होल स्क्वायर, है ना. इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ होता है. सो आई विल बी यूजिंग दैट कंसेप्ट. तो आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट स्टेप एज tan sec inverse 2, rather small bracket I have to take, and its whole square, isn't it? As I have written sin theta the whole square as sin square theta, no? तो वही काम हमने यहाँ किया. तब आपको समझ में आएगा. स्क्वायर देख के थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है ना, व्हाट इज दिस स्क्वायर, कैसे एडजस्ट करें. बट इफ़ यू आर राइटिंग इन दिस मैनर तो आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी आराम से आती है. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. प्लस कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स 3 द होल स्क्वायर. ओके, ठीक है. सो अब अगर आपको कोई वैल्यू मालूम है कि सेकंड इनवर्स कब होता है तो वी कैन पुट दैट वैल्यू और वी कैन गो फॉर द नंबर ऑल्सो. आई हैव टू कन्वर्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ना. सेकंड इनवर्स 2 कुछ याद आ रहा है, कुछ वैल्यू कब होती है, कॉस कब आपका हाफ होता है, कॉस π/6 पे, है ना. कॉस कॉस π/3 इज हाफ. तो सेक इनवर्स 2 दिख रहा है आपका, तो ये भी π/3 का ही कंसेप्ट देगा. कॉस 1/2 कब होता है, जब वो cos 60 डिग्री या cos π/3 होता है. तो sec 60 is 2. तो इफ़ यू वांट, अगर आपको ट्रायंगल यहाँ पे यूज़ नहीं करना, सीधे वैल्यू दिख रही है, यू कैन पुट द वैल्यू. नहीं तो ट्रायंगल तो आपके पास में है ही. तो हियर कॉस्ट, व्हाट अबाउट द tan 60, अगर मैंने 2 मेथड से यूज़ कर रही हूँ इसको. अगर आप चाहें तो दोनों में ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं और यू कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट ऑल्सो, क्योंकि बहुत फास्ट में आपको सॉल्व करना है. और दिस इज tan π/3 the whole square, isn't it? अब यहाँ पे तो कोई एक कोसेक की वैल्यू 3 तो कभी होती नहीं, मतलब होती है बट उसका पर्टिकुलर एंगल वी आर नॉट अवेयर ऑफ. तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हियर यू हैव टू गो फॉर ट्रायंगल कंडीशन ओनली. सो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ओवर देयर. इन द ट्रायंगल आई एम हैविंग कोसेक, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन perpendicular. Using this condition I can get this as √8, 9 3 square minus 1 square whole root. Okay, तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है. And I can write this as cot. अब इसको मुझे cot में कन्वर्ट करना है, तो what shall I write? What to write?
दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ, कॉट क्या होता है आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखिए, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज √8 आपके पास आ जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर इज 1, तो इट्स होल स्क्वायर आई एम टेकिंग, नो इट्स होल स्क्वायर आई हैव टेकन। सो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 10π/3 कितना होता है, दिस इज 1/, दिस इज √3 द होल स्क्वायर, एंड कॉट इनवर्स एंड कॉट है, पर्टिकुलर वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं, रियल नंबर होता है, दिस इज अ रियल नंबर, तो आई एम गेटिंग द आंसर एज √8 द स्क्वायर। नाउ द फाइनल आंसर इज 3 + 8 विच इज 11। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कैसे भी दिए हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्क। आपने जो भी क्वेश्चन, जितनी भी प्रॉपर्टीज पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करेंगे, पिछली पूरी प्रॉपर्टीज को लेते हुए भी यूज करना है। नेक्स्ट क्लास आई विल गो फॉर सम मोर प्रॉपर्टीज, उसमें भी आपको पिछली प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है, तो आपको सब चीज़ें पूरी याद रखनी है। हाउ टू एडजस्ट द टर्म यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज cos tan inverse sin cot इनवर्स x, इसको आपको टू प्रूव की तरह भी दिया जा सकता है कि प्रूव दिस वैल्यू, तो हम इंस्टेड ऑफ प्रूविंग इट वी आर फाइंडिंग दिस वैल्यू, जस्ट सी दैट। अब इतना सारा दिख गया तो भी नो प्रॉब्लम, अगर आप बेसिक आपको मालूम है कि स्मॉलेस्ट ब्रैकेट यू हैव टू सॉल्व इन द स्टार्टिंग, तो सबसे पहले कॉट इनवर्स पे जाइएगा और जब आप लाइन से सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ बाहर साइन है, अंदर कॉट इनवर्स है, एंड वी रिक्वायर्ड साइन इनवर्स इन द स्मॉलेस्ट ब्रैकेट। ओके, तो साइन एंड साइन इनवर्स की पर्टिकुलर रेंज। अब यहाँ पे जो ये x है वो जिस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से दिया हुआ है उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को फॉलो कर रहा है, तभी हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। Okay, the conditions will be given. So now we are having this question and I am drawing the triangle over there. This is cot is based upon perpendicular, and in that manner I'll be getting this hypotenuse as 1 + x square, isn't it? So first of all I'll write the remaining things. लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा but the calculation is easier. This is tan inverse sin, I will convert it in terms of sin, that is sin inverse of, क्या लिखूँ, 1/√1 + x square, isn't it? इस तरह से ब्रैकेट खत्म। Now sin and sin inverse particular condition follow हो रही है, so I'll be getting the answer as cos tan inverse 1/√1 + x square। ठीक है, अब आपके पास देखिए बाहर cos है, अंदर tan इनवर्स है, तो अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दैट tan इनवर्स इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स। तो व्हाट शैल आई गेट, तो इसके लिए मुझे सेम ट्राइंगल पे काम नहीं चलेगा क्योंकि बिकॉज द डायमेंशंस आर डिफरेंट नाउ, सो आई विल बी ड्राइंग दिस अनदर ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हाइपोटेन्यूज था √1 + x square, नाउ माई √1 + x square is base, तो आई विल बी ड्राइंग द अनदर ट्राइंगल विद द गिवन कंडीशंस। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, क्या वैल्यूज़ आपके पास में हैं। दिस आई एम टेकिंग एज √1 + x square, दिस इज 1, तो व्हाट अबाउट दिस, आप कैलकुलेट करके बताइए। दिस वी आर गेटिंग एज 2 + x square, isn't it? देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। Using that condition you will be getting the answer. So I can convert now the values as cos tan inverse, sorry, tan inverse को तो हमें हटाना है, I'll be writing cos inverse so that I can get the final answer, and this is what, base upon hypotenuse, so the answer is what, √1 + x square upon 2 + x square. So children, whenever you will be solving the terms, भले कितने भी डिफिकल्ट दिखें आपको, कितने ही बड़े क्यों ना दिखें, स्टेप बाय स्टेप करने से आपका बेसिक कंसेप्ट पूरे के पूरे वही है जो आपने लर्न किए।
बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, थोड़ा टाइम लेगा बट आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दिस चैप्टर इज़ बहुत ही ईजी है, इसका स्कोरिंग है ये आपके लिए, आपको आराम से इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े बिना। एंड कॉम्पिटिटिव में आपको मालूम ही है कि इसका बहुत यूज़। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वर्क। In next class, we'll learn more properties related to inverse trigonometric function. So till then, goodbye all.